Praise the Lord. I greet you all in the name of Jesus. This is the Lord's day. Let us rejoice and let us be glad because He is our living God. He is the Lord whom we should look to and we should worship and we should praise His holy name. So let's spend some time in worshiping and praising the name of the living God. आप सबों को जय मसीह की। आज ये परमेश्वर का दिन है और इसीलिए हम उसके नाम को धन्य कहें, उसके सामने अपने आप को दंडवत करें, गीतों को गाएं और उसकी आराधना स्तुति करें, क्योंकि वो हमारा जीवता परमेश्वर है। Lamentations chapter 3 verses 22 and 23 says that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yes, our God's faithfulness is great. He is our God who loves us. परमेश्वर का वचन कहता है सपोपदेशक उसका 3 अध्याय 22 और 23 में कि ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। वो दयालु परमेश्वर है, हम पर दया करता है और उसकी सच्चाई जो है वो महान है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आइए आज हम थोड़े समय अपने सरों को झुकाए और अपने परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। Let's pray. Loving Heavenly Father, we come to Thy feet in the name of Jesus and by the power of Your Holy Spirit. We thank You, Father God, praise You and bless You that You are faithful, my God. We know that You have loved us with an everlasting love. And Lord, You have been kind to us thus far. We thank You and praise You for Your compassions, O God, that never ceases, O God. For Your mercies, O God, that never comes to an end, O God. This morning, even as we gather together in the name of Jesus, O God, let Your compassion, Your mercy flow on each one of us. Let us once again become renewed, O God, by the power of Your Holy Spirit. Thank You, Father God, for this day. I give You all the glory. I give You all the honor and praise. In Jesus' name, I pray this prayer. मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के ये मधुर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तेरी दया हमारे लिए हमेशा 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 के लिए प्रभु तू हमारे लिए प्रभु वो परमेश्वर है जो हम पर दया करता है। प्रभु तेरी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। हम प्रभु अपने मनों को तैयार करते हैं तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, ताकि प्रभु जो गीत हम गाएं और तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें, वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं और अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद और स्तुति के साथ ये प्रार्थना को यीशु मसीह तेरे मीठे प्यारे नाम से मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
King of endless worth, and no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Jesus, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Lord, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. Lord, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. Lord, it's all about you, Jesus. प्रेज लॉर्ड चर्च। आइए हम सब मिलके उसके नाम की स्तुति आराधना करें। जब हम लोग इस ऑनलाइन माध्यम के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इस सिचुएशन में कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को एक दूसरे से मिलना, और चर्च भी उसके कारण खुला नहीं है। बट मैं बस यही होप करता हूँ कि हम सब अपने अपने घरों में यीशु मसीह पे आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए मिलके उसके नाम की आराधना करें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ,
Yeshua, Yeshua, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे. कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे. खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे. कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे. Yeshua, Yeshua, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. Yeshua, Yeshua, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. I'm nothing without you, I'm nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, I'm nothing without you, my Lord. I'm nothing without you, I'm nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, I'm nothing without you, my Lord. प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पे आते हैं. हम तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि तू जिंदा खुदा है. हम जानते हैं कि इवन दो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख तकलीफ चल रहे होंगे यीशु मसीह, पर उसके बावजूद भी तू हमारे साथ है, तो हमारी रक्षा रखवाली कर रहा है यीशु मसीह. अभी मैं दुआ करता हूँ इस चीज़ के लिए यीशु मसीह की हम जब वचन सुनने वाले हैं यीशु मसीह, जो भी वचन तेरा कलाम हमारे लिए लेकर आए यीशु मसीह, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यीशु मसीह कि हम उससे कुछ सीखने पाएँ यीशु मसीह, क्योंकि वो तेरा वचन है यीशु मसीह. हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए. तूने हमारी ज़िंदगियों में हमें सुरक्षित रखा है यीशु मसीह. अभी तक इतनी महामारी एक दुनिया में चल रही है यीशु मसीह, कोरोना के नाम से यीशु मसीह, पर उसके बावजूद भी तूने हमारे को सुरक्षित रखा. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं हर चीज़ के लिए. मैं यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूँ, और मैं सारी कलीसिया के लोगों के लिए और बाकी सारे हमारे दोस्त परिवारजनक सबके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, और उनको सुरक्षित रख, उनके साथ तू हो यीशु मसीह. हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए. इस छोटी सी विनती को तेरी मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, जय मसीह की. I was thinking about this topic for a very long time. और मैं ये विषय के बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था. And the topic that I've chosen today is launch out into the deep. और आज का विषय जो मैंने चुना है वो ये है गहरे में उतर. The text I've taken is from Luke's Gospel chapter 5 verse 4 and 5. और मैंने ये लूका उसके 5वें अध्याय और 4 और 5 वचन से लिया है. Jesus said to Simon, और यीशु मसीह शिमोन से कहता है, put out into deep water and let down the nets for a catch. और यीशु मसीह शिमोन से कहता है कि अपने जाल को गहरे जल में डाल दे.
And here's Simon, knowing that whole night he toiled, and but then he says, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But nevertheless, when you say so, I will let it down. लेकिन शिमोन उत्तर देता है कि हे स्वामी, हमने रात भर तो कड़ी मेहनत करी है, लेकिन एक भी मछलियां हम नहीं पकड़ पाए. लेकिन अगर तू कहता है तो हम जरूर अपनी ये जाल को डालेंगे. Here we see Simon Peter, who was a fisherman by profession, and for a very young age he knew fishing. और यहाँ हम देखते हैं शिमोन पतरस को, जो मछुआरा था, बहुत बचपन से वो जानता था कि किस तरीके से मछलियां पकड़ी जाए. He knew that night time was the best time, when the sea is quiet and then there will be a big catch. और उसे ये पता था कि रात्रि के समय वो अच्छा समय होता है जहां पर उसे बहुत मछलियां मिल सकती है. But then he obeyed Jesus. लेकिन उसने यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी. He said, because you say, I will let down my nets. और यीशु मसीह से वो कहता है, क्योंकि तू कहता है तो मैं अपने जाल को गहरे में डालूंगा. We see here the power that is in the word of God. यहाँ पर हम देखते हैं वो सामर्थ जो परमेश्वर के वचन में है. Psalm 33 verse 9 says, for he spoke and it was done. और भजन संहिता 33:9 में लिखा है कि उसने कहा और ऐसा ही हो गया. All that we see around us, the nature, beautiful trees and the mountains, God spoke a word. He said, let there be light, and there was light. और हम चारों तरफ परमेश्वर की उस रचना को देखते हैं, सुंदर पहाड़ियां और अच्छे पेड़. जब हम देखते हैं ये सारी चीज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रचना करी. There was power in the words of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के वचन में सामर्थ है. When he went to Lazarus' tomb and he was dead for 4 days, he cried out, he said, Lazarus, come forth. And Lazarus woke up from, he was dead for 4 days, and with his clothes on, he just came out. और जब यीशु मसीह लाजर के कब्र की तरफ गया तो उसने लाजर को पुकारा कि हे लाजर, तू बाहर निकल आ. और वो लाजर जो मर चुका था 4 दिन पहले, वो उस कफन को बांधे वो बाहर निकल कर आया. So when Peter heard the voice of Jesus, he knew at once, this is no carpenter's son, this is no rabbi, this is the very Son of God who's giving this call that put the net into the deep. और इसीलिए जब शिमोन पतरस जब यीशु मसीह के उन शब्दों को सुना तो वो जानता था कि ये जो बोल रहा है ये एक बढ़ाई का पुत्र ही केवल नहीं है, ये एक रब्बी ही नहीं है, लेकिन ये जीवित परमेश्वर का पुत्र है. और इसीलिए वो तुरंत ही उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी बन गया. We see the obedience of Peter to the very words of Christ. और हम पतरस के उस आज्ञाकारिता को देखते हैं जो यीशु मसीह के वचन के प्रति. And that obedience he translated into action by putting the net into the right side. और वो आज्ञाकारिता को उसने कार्य में दिखाया, और ये उसका कार्य था कि उसने उस जाल को पानी में और गहरे में डाल दिया. Launching into the deep is something we cannot understand. It's beyond our understanding. गहरे जल में जाना ये ऐसी चीज है जो हम नहीं समझ पाते, हमारे समझने से परे है. It is to go to unexplored areas. और ये बात वो होती है जहां पर हम कभी ना पहुंचे हो, वहां पर हमें जाना है. It is enough to live in shallow waters. और उथले पानी में, उथले जल में रहना ही काफी नहीं है. Where there is comfort all around. और वहां पर जहां पर आराम है. Every hard work, God pays that. और परमेश्वर हर एक परिश्रम को उसका प्रतिफल देता है. He doesn't want us to go empty-handed. वो नहीं चाहता कि हम खाली हाथ चले जाएं. He has a reward for each person. और उसके पास हमारे लिए प्रतिफल है. It is something that Zechariah chapter 4 verse 6 promises. It is not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord.
और जैसे हम पढ़ते हैं जकरिया उसके 4 अध्याय और 6वें वचन में परमेश्वर कहता है ना तो बल से ना तो सामर्थ्य से लेकिन मेरी आत्मा से परमेश्वर कहता है. Later in Gospel of Luke chapter 5 verse 6-7 we read, when he put his net on the right side into the deep, there was a big catch, so much so that the net was falling apart, it was getting torn. और हम देखते हैं लूका 5, 6 और 7 में कि जब पतरस आज्ञाकारी हुआ और अपने उस जाल को उसने समुद्र में डाला तो एक बहुत बड़े तादाद में उसने मछलियों को अपने उस जाल में देखा. God has plans for each person. परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है. His dreams for you are far bigger, and He delights in giving you exceedingly abundantly above all that you can ask or think, as promised in Ephesians chapter 3 verse 20. और परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है और उसके पास जो हमारे लिए कल्पनाएं हैं वो बहुत बड़ी है और वो चाहता है कि हमें बहुतायत से हर चीज हमें दे. We have lived enough in shallow waters. हम काफी दिनों से हम एक उथले पानी में शायद जी रहे A होंगे, comfort zone. हमारे उस आराम But God is आराम के स्थान में. God is calling us to go into the deep by faith. लेकिन परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम उस गहरे जल में जाएं विश्वास के द्वारा. We have dreams, we have plans in our lives to accomplish something. हमारे पास सपने हैं, कल्पनाएं हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ पूरा हो जाए. And you must have toiled for many of these things for many years and decades. और हो सकता है कि आपने अपने जीवन के लिए बहुत संघर्ष करी हो और बहुत सालों से संघर्ष कर Toiled रहे in your हो. marriage. और हो सकता है अपनी शादी के लिए आप संघर्ष कर रहे Toiled in हो. your business. हो सकता है आप अपने व्यवसाय के लिए आप संघर्ष कर रहे हो. Toiled in your job. हो सकता है अपने उस जॉब के लिए आप संघर्ष कर रहे हो. But remember, success is waiting for you. और लेकिन याद रखिए कि आपकी उस जीत जो है आपके लिए रुकी हुई And है. will overtake you in the place where God calls you into the deep by faith. और आपके ऊपर जब वो आएगी तो आपको वो आगे ले जाएगी जहां पर परमेश्वर आपको बुला रहा है उस गहरे जल में. He will tell you, now is the time to cast your net into the deep. और वो आपसे कहेगा कि अब वो समय है कि आप अपने उस जाल को गहरे जल में डालो. When we hear the direction from God, launch, put your net into the deep, our toiling season gets over. और जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और वो कहता है कि गहरे जल में उतर, तब हम और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे संघर्ष के दिन अब बीत गए. Because God has plans for us to prosper us and not to harm us. क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है, वो हमारे हानि की नहीं है लेकिन हमारे लाभ की He है. wants to give you a future and a hope as promised in Jeremiah 29 verse 11. और वो हमें एक नया जीवन देना चाहता है, एक भविष्य देना चाहता है, जैसे यिर्मयाह उसका 29 और 11 में लिखा है. He wants you to practice faith along with action. वो चाहता है कि हम विश्वास को हम अपने कार्य के द्वारा दिखाएं. When God calls us into the deep, He wants us to get intimate with Him. जब परमेश्वर हमें गहरे जल में बुलाता है तो वो चाहता है कि हम उसके करीब और निकट आ He जाएं. wants us to know His will. वो चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को He जान wants us लें. to hear His voice वो चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुन लें. and be obedient to His और calling. वो चाहता है कि हम उसके वचन के आज्ञाकारी The Bible बनें. is full of people who are obedient to the call of God. और बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो आज्ञाकारिता में चले और परमेश्वर के आवाज के प्रति आज्ञाकारी रहे. Jesus spoke in a parable in Matthew chapter 7 verse 24 to 27. और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में बताया मत्ती 7 और 24 से 27 तक. He spoke about two people, a foolish man and a wise man. उसने दो व्यक्तियों के बारे में बताया, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान व्यक्ति. And he said that the foolish man, the wise man, he made his house on the rock. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो
जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने अपने घर को एक चट्टान पर बनाया. He was like a man who would hear and also do what he hears. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सुनता था और वैसा ही करता था जैसा उसने सुना. He was man of faith and he was man of action also. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि विश्वास का और कार्य का दोनों का व्यक्ति था. And when the winds came and the storm came and hit his house, it was strong, it was standing there, nothing could disturb his house. और जब हवा और आंधी चली और जब वर्षा आई तो उसके घर को वो बिगाड़ नहीं सकी. Now the second man whom he says a foolish man was in his comfort zone and said, who is going to make a house on the rock or on the hill? Let me make my house in the shallow sand that was near the sea. और वो जो दूसरा मूर्ख आदमी था उसने कहा कि कौन जाएगा उस पहाड़ पर और कौन बनाएगा उस पहाड़ पर घर. मैं तो यही नीचे सैंड के ऊपर और रेत पर अपना घर बना लूंगा जहां मुझे ज्यादा संघर्ष करना ना पड़े. When the rain came, the storm came, the floods came, his house was shattered and broken to pieces. और जब बारिश आई और जब तूफान और हवा चली तो उसका घर जो है वो गिर गया. This is a person who hears but does not do what he hears. और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सुनता तो है लेकिन कभी नहीं करता जो उसने सुना है. And so important that faith and action go together. और इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा विश्वास और हमारा कार्य दोनों एक साथ चले. We see the example of Abraham also. हम एक और उदाहरण देखते हैं इब्राहिम का. He was asked to sacrifice his only son who was born in old age. और परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने इकलौते पुत्र को तू बलि चढ़ा दे जो उसके बुढ़ापे में उसको पैदा हुआ था. Abraham had faith that God will not take away his promised son. और इब्राहिम के पास वो विश्वास था कि परमेश्वर मेरे बेटे को कभी इस तरीके से नहीं लेगा. But still by action he took him to the Mount Moriah and he tried to sacrifice his son. लेकिन तो भी परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसने अपने बेटे को मोराय पर्वत पे लेकर गया और वहां पर वो उसको बलि चढ़ाने के लिए ले गया. Faith was working along with works. उसके अंदर विश्वास कार्य कर रहा था उसके कार्य के साथ and his साथ. faith was made perfect. और उसका विश्वास जो है वो सिद्ध किया This गया. we see in the book of James chapter 2 verse 21-22. और ये हम पढ़ते हैं याकूब उसके दूसरे अध्याय 21 और 22 में. The Bible says, do you not know faith without work is dead? और परमेश्वर का वचन ये कहता है क्या तुम नहीं जानते कि बिना कार्य विश्वास जो है वो मरा हुआ है. It is recorded in James 2:20. और ये हम पाते हैं याकूब 2:20 में. Jesus taught a great message. He gave a great lesson to the believers that faith and action must go hand in hand. और यीशु मसीह ने ये एक बड़ी सीख लोगों को दी थी कि विश्वास और कार्य जो है वो साथ साथ चलते हैं. Again we see incidents in John chapter 21 verse 3 and 4. और एक और हम उदाहरण देखते हैं यूहन्ना 21 और 3 और 4 में. When Jesus had risen from the dead, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा meanwhile Peter decided to go back to do fishing. और पतरस अब ये ठान लिया कि मैं वापस अपने मच्छी के व्यवसाय में चले And so जाऊं. other disciples also followed him. और इसी तरीके से हम देखते हैं कि और भी जो शागिर्द थे और भी डिसाइपल्स थे वो उसको हो लिए. Whole night they toiled, caught nothing. और रात भर वो बहुत मेहनत करी लेकिन उनको कुछ भी मछलियां वे नहीं पकड़ पाए. Until morning Jesus comes and he says, cast your net on the right side, and there was a big catch. और यीशु मसीह सवेरे को आता है और उससे कहता है कि अपने जाल को गहरे में डाल और तब वो देखता है कि एक बहुत बड़ा दल जो मछलियों का है उसने वो पकड़ पाया. Many believers and Christians and many people, they toil whole night, they toil in different ways, on their own effort they do. और बहुत तेरे मसीह लोग और बहुत तेरे विश्वासी लोग हम देखते हैं कि बहुत संघर्ष करते हैं, रात भर दिन भर इतना संघर्ष करते हैं
और कार्य करते हैं, but their job is futile, nothing, no catch. लेकिन ये हमें देखने को मिलता है कि उनका जो संघर्ष है वो बिल्कुल व्यर्थ में गया है. And so they say, let's get back to business. और इसीलिए वो कहते हैं कि चलो हम वापस से अपने व्यवसाय में Let us चलें leave the church. और हम अपने कलीसिया को छोड़ दें Let us get back to routine life. और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हम And चले such जाएं. people are called backslidden Christians. और ऐसे मसीहों को हम गिरे हुए मसीह या पीछे हुए मसीह हम कहते हैं. पीछे हट गए वाले मसीह हम कहते Maybe हैं. during this pandemic, COVID virus pandemic, many people must be thinking, church is not operating, there's no pastor around, let us go back to our work, let us do whatever we were doing. और हो सकता है कि इन दिनों में जबकि महामारी फैली हुई है तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कोई चर्च नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए, तो फिर हम वापस अपने जीवन में चले जाएं. But we need to be obedient to God and be sensitive to His voice. लेकिन हमको परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना जरूरी है और उसकी आवाज के प्रति आज्ञाकारी Many होना. Christians are eager to launch into new business. बहुत सारे मसीह चाहते हैं कि नए व्यवसाय को खोलें, नए बिजनेस को खोलें या एक नए लाइन को पकड़ें or a new relationship. और एक नए संबंध में जुड़े. But they do not want to put hard work into it. लेकिन वो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते. They do not want to hear the voice of God और also. इसके साथ वो परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनना When He चाहते. says, go into the deep. जब वो कहता है कि गहरे में उतरो Come and be intimate with me. और मेरे करीब आओ और मेरे करीबी में रहो, Spend time with me. मेरे साथ समय बिताओ Believe and trust my promises. और मेरे प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करो और उस पर भरोसा And रखो. even the command that Jesus gives, follow me and I will make you fishers of men. और बहुत देर बार परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे हो जाओ, हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्य के का मछुआरा बनाऊंगा. It's recorded in Matthew chapter 4 verse 19. और ये हमें मिलता है मत्ती 4 और 19 में. When this call comes, people just draw back, and that is not for me. और जब ये बुलाहट आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज मेरे लिए नहीं And है. that is why we see evangelism getting low and low. Nobody wants to pay attention to evangelism. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई जो है वो हल्की और हल्की होते जा रही है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते. That's not my job. I'm not paid for it. और वो कहते हैं कि ये मेरा कार्य नहीं है और मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं. We are not attentive to the words of Christ and do that also practically. और हम परमेश्वर के वचन को और उसकी वाणी के प्रति हम सतर्क नहीं रहते और हम उसके साथ नहीं चलते. When we are obedient to the voice of God and do what He promises or what He tells us to do, we can see great results in our life. जब हम उसके वचन के प्रति और उसके आवाज के प्रति जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो हम बहुत सारी आशीषों को देखते हैं और हम बहुत सारे उस बड़े कार्य को हमारे जीवन में देखते हैं. Recently I saw, I will give you example of my son Anugrah who was recording a song based on COVID virus. और मैं एक उदाहरण दूंगा मेरे बेटे अनुग्रह के लिए जो एक गाने को रिकॉर्ड कर रहा था. I saw his commitment by faith and also in action, how he and my daughter Akansha, how they were involved in production of this video song. और मैंने देखा कि किस तरीके से वो मेहनत कर रहा था. मेरी बेटी भी मिलकर आकांक्षा दोनों मेहनत कर रहे थे और ये सॉन्ग की रिकॉर्डिंग और उसके late into the night they would shoot and they would edit and they will prepare all the things, the sceneries and everything they'll prepare, and of course some help they got from their friends also, but they put in a lot of labor. और इवन रात के समय वो शूटिंग करते थे और एडिटिंग करते थे, बहुत सारा मेहनत करते थे और इस कार्य के लिए वो लगे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और बहुत सारे फ्रेंड्स भी उनके साथ I could see their commitment. मदद कर रहे थे. I could see their commitment towards the work. मैं
उस कमिटमेंट को देख रहा था जो उसने उस कार्य में लगाया. The song was entitled Reason. No, we won't give up. This is the battle of our lives. और ये इस गाने का शीर्षक है रीजन, कि हम अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारे जीवन की लड़ाई है. He had faith that before the launch, everything will be ready by that date, which was, I guess, the date was 14th June 2020. He knew that, by faith he knew that everything would be ready. और विश्वास के द्वारा उसे पता था कि ये दिन मैं इस गाने को अपलोड करूंगा, और 14 जून वो डेट उसने ठहराई थी, और उसने देखा कि उस डेट तक ये पूरा गीत बनकर तैयार हो चुका था. Both faith and works, action, they combined together, there was a tremendous result. और जब विश्वास और कार्य दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है. When the time of launch came, so many people wrote and congratulated him from all over the globe, appreciating his song. और जब ये लॉन्चिंग का समय आया तो बहुत सारे लोग उसे कंग्रेचुलेशन करे, और बहुत दूर दूर से लोगों ने उसे कंग्रेचुलेट किए. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, where are you today? आज आप कहाँ हैं? Are you toiling in your life on your own effort? क्या आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में अपने ही बल से? Or are you sensitive to hear the voice of God saying, go into the deep? कि आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं जो वो बोल रहा है कि अपने विश्वास में और आगे बढ़ो. By faith, let down your nets. और विश्वास के द्वारा अपने उस जाल को नीचे डालो. Move from your shallow place. और वो उथले और आराम की जगह से वहां से आगे बढ़ो. When you do this thing, when you will go into the deep, when you launch into the deep, then God will direct you to the destiny that He's prepared for you. जब आप उसकी आवाज को सुनकर जब आप ऐसे करते हैं और गहरे जल में उतरते हैं तो परमेश्वर आपके उस कार्य को सफल करेगा और आपको वो आशीष देगा. In your heart you will hear His voice. Every word that God speaks you will hear, and you will know the purpose of living. और आपके दिल में एक आवाज आएगी और आप जानेंगे कि ये परमेश्वर की वाणी है, और आपको ये पता चलेगा कि आपका वो लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का पर्पस क्या है. There is a great harvest waiting for you. आपके लिए एक बहुत बड़ी कटनी रुकी हुई है. A big catch waiting for you. एक बहुत बड़ा पकड़ आपके लिए रुका हुआ है. God uses you and me only individually to proclaim His gospel and bring the salvation to the people in the world. और परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तरीके से इस्तेमाल करता है कि हम परमेश्वर के उस वचन को सुनाएं और परमेश्वर के उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं. And you will be the one who will fulfill His calling, who says, I will make you fishers of men. और आप वो व्यक्ति होंगे जो उसके बुलाहट को पूरी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं मनुष्य के मछुआरा मनुष्य के पकड़ने वाला बनूंगा. May God bless you with this message. परमेश्वर आपको ये वचन से आशीषित करे. Let our catch be big. हमारा ये जो कैच है, हमारा जो पकड़ है वो बहुत बड़ा रहे. Not empty nets. और खाली में ना रह जाए. Let our lives be fulfilled. Let it be filled with joy and happiness. हमारा जीवन बड़े आनंद से और बड़े हर्ष से भर जाए. Not empty and gloomy. हमारा जीवन खाली ना रहे और हमारा जीवन अफसोस में ना रहे. We are born for a purpose. हम एक लक्ष्य के लिए पैदा हुए. The purpose is to live the name of God higher. और हमारा ये पर्पस है और हमारा ये उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं. Let us pray. हम प्रार्थना करें. Our loving Heavenly Father, we thank you for this message that you've given us. परमेश्वर पिता, ये वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें दिया I है. pray for the people who are watching this message, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस मैसेज को देख who रहे हैं have toiled many years and have not got a catch. और हो सकता है उन्होंने बहुत साल संघर्ष करी लेकिन कोई
चीज का उन्हें जवाब नहीं Now मिला, it is time for them to launch into the deep. लेकिन अब वो समय है कि वो गहरे जल में उतरे। Let them have the faith in God. हो सके कि उनके पास वो विश्वास हो जो परमेश्वर पर है, And let them, with faith and with action, let them move forward. और विश्वास के द्वारा और कार्य के द्वारा वो परमेश्वर तेरे नाम से आगे बढ़े, And they will have a big catch. ताकि उनकी जो पकड़ है वो बड़ी हो। I thank you that you are going to use each and every one of us for your glory. परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हर एक को इस्तेमाल करेगा कि तेरी जय जयकार हो। In Jesus' precious name I pray. यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मैं मांगता हूँ। And now let us receive the benediction. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and evermore. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ बनी रहे आज और हमेशा के लिए। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। We will meet next Sunday. Also, I want to tell you that the online giving is also there. Online giving का स्क्रीन है, उसमें आप जो अकाउंट नेम आश्रय है उसमें आप दे सकते हैं अपने टाइद या अपने दान, जो भी आपको लगे। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, आपको जीवित रखा इस कोविड वायरस के दौरान भी। और मेरा पूरा यकीन है that God will protect you and me from this pandemic, and He will take us forward, march us forward to complete, to do His will. परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा ताकि उसी इसकी इच्छा अपने जीवन में हम पूरी कर सके। Amen. Praise the Lord.